This was a day when I was extremely confused. I thought I was just going for collecting one other certificate that will be relevant for my career, but as I reached there, I realized that there was an entire ceremony going on. People were dressed up, people were decked up, but here I was, not at all dressed up, and let's see what happens in the day. Day before this event, I had got a WhatsApp message saying that I have to reach here by 4 p.m., before 4 p.m. in fact, and I thought, okay, I'll go it after completing the day's work in the court. And I just went there without even combing my hair. And as I reached there, you can see what all is going on, and this became one of the days which I will cherish, and which I or every law person, every lawyer should cherish in his or her life. This was the day when I got my certificate of practice to practice law throughout India, and I'll tell you what it was. Confused about what just happened in my life? I'll give you some clarity. So, this was the ceremony where I got the certificate of practice because of clearing the All India Bar exam or the AIB exam. For all the fresh law graduates, or for all those who are still in the law school, or for those who are dreaming of becoming a lawyer, this AIB exam has become of a lot of significance. And even for the lawyers who have not yet cleared it, it's very important. Because if you don't clear this exam within 2 years of you becoming the lawyer, then you will have to give up your practice of law. You cannot practice law in any of the Indian states. अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि मुझे भी एडवोकेट बनना है, मुझे भी क्लैट एग्ज़ाम क्रैक करना है, या मुझे और कोई लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, अपने स्टेट का एग्ज़ाम देना है, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ भी कर सकते हो। अनअकैडमी के पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे क्लैट, आईलेट और ऐसे सिमिलर एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए। अभी भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है, आपके पास एक और ऑप्शन बचा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच विल बी कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इवन इफ आफ्टर ज्वाइनिंग द बैच यू फील लाइक आई एम नॉट enjoying this batch, I'm not enjoying what is being taught here and I want to switch my batch, you can do that as well. तो जो भी लोग हैं जो 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में हैं, या 12th स्टैंडर्ड के बाद भी आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अनअकैडमी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज दीज मेंटोर्स आर टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड। यहाँ पे आपको एक अच्छा एप्लीकेशन, एक अच्छा वेब बेस्ड, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मिल जाता है, जहाँ पे आपको रेजर हैंड जैसे फीचर्स हैं, और आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसी इतनी अच्छी चीज़ मिलती है, जहाँ पे आपके मेंटर्स के साथ आप रोज़ लाइव सेशन लो, आपको कौन रोक रहा है। तो जैसे कि आपको एक फ़िज़िकल बॉन्डिंग की कमी महसूस होती है, वो भी आपको अनअकैडमी के कोर्सेज़ या प्रोग्राम्स के साथ में नहीं होगी। और अगर आप इस कोर्स को ले रहे हो तो डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड VLOGISH बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प यू टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज यू आर परचेजिंग फ्रॉम एन अकेडमी. So do visit the link given in the description box below, and if you're not even going to purchase any of the subscription, then do try their free mock test. आपको पता लग जाएगा एटलीस्ट कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो, अगर आपको लॉ कभी प्रैक्टिस करनी है या आपको कभी क्लैट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। एक्सपर्ट्स डू बिलीव कि इस एग्ज़ाम के आ जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसे हुआ है कि अब लॉ की प्रैक्टिस को बहुत लोग, बहुत लॉयर्स, बहुत ग्रेजुएट्स बहुत सीरियसली लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने AIB एग्ज़ाम नहीं क्लियर करा या फिर वो इस स्टैंडर्ड तक भी नहीं पहुँचे, तो इसके बाद उनकी लॉ डिग्री पर क्वेश्चन उठ सकता है। अब AIB एग्ज़ाम तक पहुँचना कैसे है? वैसे आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज़ ऑन हाउ टू क्लियर द AIB एग्ज़ाम, and you will get the entire guidance to clear the exam even in one night if you have not prepared for it until now. But I suggest you to start preparing while you still have time for it, so that you can prepare in peace. To reach that step of clearing the AIB or of giving the AIB exam, the first thing you should do is to get a law degree. लॉ डिग्री के लेने के बाद थोड़ा सा भी आपको लेट नहीं करना है, आपको एनरोल होना है एज एन एडवोकेट। जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो वहाँ के स्टेट बार में जाके, अगर आप दिल्ली से तो हो, दिल्ली बार में जाके आपको अपना एनरोलमेंट का फॉर्म भरना है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी पूरी करनी है और एनरोल होना है एज एन एडवोकेट। जिस दिन आपकी एनरोलमेंट की डेट होगी उसी दिन आप एडवोकेट बनोगे। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, आपको एनरोलमेंट होना इज़ एसेंशियल, इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। एनरोलमेंट ले लेने के बाद आपको अपने किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हाई कोर्ट की, किसी भी कोर्ट की आपको मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद, एनरोलमेंट लेने के बाद में आप AIB का फॉर्म फिल करोगे।
AIB एग्ज़ाम को ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि बाई एनुअली कंडक्ट कराया जाता है. इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू एग्ज़ाम, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके कोई बहुत ज़्यादा सीनियर लोग को इसके बारे में बहुत नॉलेज होगी. So in case you want to start preparing for it, or if you want to know the syllabus, then I have a playlist on my channel from where you will be able to know how to prepare for the AIB, what is the syllabus, कैसे कैसे आपको करना है, कैसे questions आते हैं, ये भी मैंने डिस्क्राइब किया था. मेरा जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो मैंने आज तक अपने चैनल पे नहीं बताया, एंड दिस विल बी द ओनली वीडियो वेयर आई विल बी शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस. तो AIB एग्ज़ाम देते हुए मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चली. ऑल्दो इससे पहले मुझे लग रहा था यार क्या बहुत ईजी सा एग्ज़ाम है, और अभी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट एक्सट्रीमली टफ. इट कैन बी क्लियर्ड आफ्टर स्टडिंग फॉर सम टाइम, ओनली फॉर सम टाइम आई एम सेइंग, इफ़ यू हैव स्टडीड वेल इनफ इन योर लॉ स्कूल. Also because it's an open book exam, I mean open direct exam. You're allowed to take barracks to the examination hall. When I reached the examination hall, I realized that there are a lot of law graduates in India जिनको AIB को क्लियर करने के लिए भी बहुत सारी प्रैक्टिस और डेडिकेशन चाहिए. वहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रिलेटिवली हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी एज में लॉ एग्ज़ाम क्लियर किया है और अब वो AIB एग्ज़ाम देने आए हैं. तो उनके लिए मुझे वहाँ देख के लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो रहा है. तो अगर अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अगर अलग अलग एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम का होना बहुत ज़रूरी था पैरिटी के लिए. ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट. इसके बाद में आपको अपना प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, फाइनल भी मिलेगा, और वो जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है वही है जो आपके पास एक प्रूफ है इस बात का कि यू आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया एज एन एडवोकेट. In case you want to see the certificate of practice that I got after clearing the AIB exam, here it is. You can see it here. This is the kind of certificate you get after you clear the exam, once you clear the exam in India. And this is that certificate of Bar Council of Delhi, which I got before the AIB exam. ये पहले आता है, ये बाद में आता है. आपको किसी स्टेट में पहले एनरोल कराना ज़रूरी है AIB के लिए. फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं किसी भी स्टेट में एनरोल करा सकता हूँ. तो हाँ, आप किसी भी स्टेट में एनरोल करा सकते हो. And during the ceremony, I got so happy, so elated because I met many of the Vlogish subscribers there. Moreover, I wanted you to see how they were distributing these certificates. They were really nice, really sweet people who were calling each and every member, each and every advocate to this seat-like structure, and they were distributing sweets. I mean, because of COVID, we had to pick up our sweets on our own, of course. अच्छा नहीं लगेगा ना वो सबके मुंह में एक एक रसगुल्ला डालेंगे तो. So we picked up our sweet after receiving our certificate. Here you can see me getting my certificate of practice after clearing the IB exam. It is indeed a proud and a very good moment for any person who's in the field of law. I immediately picked up my rasgulla and I left the venue. That was how my day went.